So our next poem is Two Little Kittens, and there were two little kittens, and it was a stormy night, and these two little kittens started at first quarreling, then this quarrel converted into fight. And what was the reason of this fight? Because one had a mouse, one kitten had a mouse, and the other had none, and other kitten had nothing, and that was the way the quarrel began. And because of this their quarreling started. एक के पास एक माउस था एक किटन के पास, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, और इस वजह से उनकी जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई. I will have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse. We will see about that. And one of the kittens said, I will have that mouse. भाई मैं लूंगी इस माउस को. तो said the bigger cat. Bigger cat या kitten एक ही बात है. तो जो बड़े वाला होता है वो अपना पहले थोड़ा सा impression जमाता है. तो वो क्या कहता है कि I will have that mouse, कि surely I will take this mouse. अब दूसरे वाला है वो भी कम नहीं है, वो क्या कहता है, यू विल हैव दैट माउस, वी विल सी अबाउट दैट. अच्छा तो तुम लोगे, चलो देखते हैं. ऐसे ही लड़ाई होती है ना, कैसे कि बोल के दिखाना, करके दिखाना. तो वो दूसरे वाले किटन को क्या कहता है, यू विल हैव दैट माउस, वी विल सी अबाउट दैट, देखते हैं तुम कैसे लोगे. आई विल हैव दैट माउस सेड द टॉर्टोइस शेल. टॉर्टोइस शेल क्या होता है, जो स्मॉल किटन है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, जो छोटे वाले किटन के लिए यहाँ पे टॉर्टोइस शेल यूज हुआ है. अब छोटे वाला जो किटन है वो भी क्या कहता है, आई विल हैव दैट माउस, एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर शी फेल. सिस्टर क्या, एक दूसरे को ही कहा है उन्होंने. तो अब क्या, स्पिटिंग चिल्लाते हुए, स्क्रैच, स्क्रैच क्या होता है, जैसे कि आप अपने नेल से स्क्रैच करते हो. अब ये जो क्वर्ल थी, पहले तो क्वर्ल क्या थी कि अभी वो सिर्फ वर्बली बोल रहे थे कि ये माउस मेरा है, दूसरी वाली कह रही थी कि ये माउस मेरा है. लेकिन अब क्या था कि नाउ क्वर्लिंग कन्वर्टेड इनटू फाइट. और फाइट में कैसे चेंज हुई वो, कि उन्होंने एक दूसरे को स्पिट करना शुरू किया और स्क्रैच करना शुरू किया. I have told you before, it was a stormy night when these two kittens began to fight, and the poet has told you what the poet has told you, that it was the stormy night. Stormy night थी और snowfall हो रहा था और बहुत ठंड थी, extreme cold थी. तो it was the stormy night when this fight began. The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. So an old woman came there, and she was carrying a broom. What is a broom? ये देखो हाथ में जो ली हुई है broom, झाड़ू को broom बोलते हैं. Sweeping broom, और वो झाड़ू लगा रही थी. Sweeping broom का मतलब झाड़ू लगाना. और उसने क्या किया कि उन दोनों kittens को वो अंदर एक किसी रूम में किसी जगह पे, when they were quarreling, when they were fighting, this old woman took them out of that place. उस दोनों किटन्स को वहां से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो झाड़ू लगा रही थी. Right out of the room, it means that these two kittens were in the room. An old woman came there and she was sweeping broom, and she took out both the kittens from the room. The ground was covered with frost and snow. They had lost the mouse and had never no now here to go. अब क्या था कि there, just as I told you that it was a stormy night and the ground was covered with frost and snow. बहुत बर्फ गिर रही थी, बहुत धुंध थी. They had lost the mouse. और फिर क्या, उनका जो माउस जिस पे वो लड़ रही थी वही बेचारा गुम हो गया. And had no now here to go. अब कहाँ जाए वो, इतनी ठंड है, ना तो माउस है, अंदर से उस लेडी ने बाहर निकाल दिया, लड़ने के तो कुछ भी नहीं मिला. So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor. So they lay. ले मतलब वहीं लेट गई, बाहर ही. शिवर्ड कांप रही थी वो, शिवरिंग का मतलब ठंड से कांपना. Beside the door, near the door, till the old woman finished sweeping the floor. Till मतलब तब तक, when the old woman was sweeping the floor, and when she had completed sweeping the floor, then they two kittens entered the room. अभी क्या था कि ओल्ड वुमेन वो स्वीपिंग कर रही थी फ्लोर को, और जब तक किया वो बाहर ही थी, और उसके बाद वो चुपके से दोबारा से उस प्लेस पे अंदर चली जाती हैं. And then they crept in as quiet as mice, all wet with snow, and as cold as ice. And then they crept in. Crept का मतलब अंदर छुपके से जाना, that is crept.
क्वाइट मतलब पीसफुल मैनर एज माइस, माउस का जो आपका जेंडर है, अपोजिट जेंडर है वो माइस, जैसे कि एक छोटी चूहिया चुपचाप घुस जाती है, अंदर दोनों किटन चली गई। ऑल वेट विद स्नो एंड दीज टू किटन्स वर वेट विद स्नो, एक्सट्रीम स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस, और इतनी ठंडी हो चुकी थी वो जैसे कि आइस है। दे फाउंड इट मच बेटर द स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वाल एंड फाइट, और दे फाउंड इट मच बेटर, उनको भी ये जगह अच्छी लगी, दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर, किस तूफानी रात में जब बहुत एक्सट्रीम आपकी कोल्ड है और स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे सामने क्या था, वहां पे रूम में ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आग जली हुई थी, तो उनको लगा कि लड़ने और झगड़ने से तो अच्छा क्या है कि वो आराम से इस फायर के आगे बैठ जाएं। और दिस इज द एंड ऑफ योर पोएम। और इससे हमें क्या टीचिंग मिलती है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो बेकार की चीज होती है, हमें एक दूसरे से शेयरिंग की सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें सीखी वो क्या है कि हमें हमारे अंदर शेयरिंग होनी चाहिए, चीजों को शेयर करके अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी भी झगड़ा नहीं होता, और जब कोई भी जो क्वार्ल या फाइट है उसका जो रिजल्ट होता है वो एक तरह से यूजलेस होता है।